یہ ایک میلہ مونگ پھلی نے حوالے نال قومی دن، تو اس میں میرا جو کام ہے ایکچولی وہ ہے مونگ پھلی کے اوپر، گراؤنڈ نٹ کے اوپر. تو اس میں ہماری نئی ورائٹیز ابھی ہیں، باری 11 ہے، پرانی باری 16 ہے. اس کے بعد فخر چتوال ہماری آئی تھی ورائٹی. اس کے بعد لیکن میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے جو مونگ پھلی پہ ریسرچ کرتا ہے. باری 16 خود میں نے لگائی ہے، دیسی بھی لگائی ہے. آپ فارمرز کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اشتیاق بھائی یوٹیوبر ہیں ماشاءاللہ، کسانوں کے حوالے سے کافی ساری چیزوں سے آگاہی دے رہے ہیں. تلہ سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں گے. تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کے پاس کون کون سی مشین اویلیبل ہے. سڑک ابتدا 2022 نئی ورائٹی آئی ہے. اس کے بعد جڑی ہے نا یہ فخر چتوال جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر ولاگز مورت نی ایک نوی ویڈیو گن کی جی تو سنا دوست اور تو سنا برا اشتیاق حیدر براہمانی خدمت حاضر ہے. دوستو اج نی جڑی ویڈیو جی یہ ایک میلہ مونگ پھلی نے حوالے نال قومی دن بلکسر وچ منایا وینا پیا جی. تے ای اج دوستاں نال ویڈیو ساری شیئر کرساں اور مونگ پھلی نے حوالے نال بھی دوستاں معلومات دساں کہ اس اسڑے تھوا بہادر نا جڑا فارم ہے جی اتھے کیڑے کیڑے بیج چلنے پین. کوئی 3-4 ورائٹیاں ہیں جی، وہ بھی دوستاں نال ساری گل بات شیئر کرساں. باقی اس میلے نے حوالے نال جڑی گل بات اتھے ہو سی وہ بھی دوستاں نال شیئر ہو سی. دوستاں پتہ کہ 2-3 دن پہلے 4 تاریخ ایک پہلے اٹک نے وچ بڑا بہترین میلہ لگا جی اور مونگ پھلی نے حوالے نال ہی بہت زبردست میلہ ہے اور وہ ویڈیو بھی دوستاں ویکھی ہو سی اور کافی ساری معلومات ہوئی ہیں جی. اٹک اسٹیشن تے جڑے بیج مونگ پھلی نے ہے وہ دوستاں ویکھے ہو سن جی. 2-3 ورائٹیاں اتھے ہی ہیں، اٹک 19 فخر اٹک اور تیسرا بیج 10 AK002. اس کا نا نواں جڑا بھی آسی جی وہ دوستاں نال شیئر ہو سی. بہت اچھیاں ورائٹی ہیں تے اج اسڑا جڑا تھوا بہادر نا فارم ہے جی اس دی ورائٹیاں دوستاں نال بھی انشاءاللہ شیئر کرساں. پورا پروگرام دوستاں نال شیئر ہو سی جی. ریکویسٹ ہی ہے دوستوں کی تساں اپنا چینل ہے ضرور سبسکرائب کرو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا جی. تے ہن باقی پروگرام نہ بقیہ ایسا دوستاں نال شیئر کرنے جی. یہ ٹک ٹاک ہے. آپ میں سے کوئی ایک سوال کا جواب دے گا؟ کسی کو پتہ ہے کہ کوئی مشرقی پاکستان ہے؟ بھائی جان مونگ پھلی نے پکوڑے یہ ہیں مونگ پھلی کی پکوڑے ہیں، مونگ پھلی کی چائے ہے. جی جی. ہاں ساتھ سموسے چنے وہ الگ ہے. یہ جیم نہیں ہے، یہ پیسٹ ہے. یہ جیم ہے نا، اس میں شوگر ڈلی ہوئی ہے. یہ ہنی والا ہے. چکوال گولڈ جی ابتدا 22
فخری چکوال باری 2016 جی، اور یہ باری 2011 چکوال گولڈ، اور یہ فدا بھائی بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیمور عباس رضوی صاحب کو میں کہوں گا کہ آ کے نعت پیش کریں. تیمور عباس رضوی. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر رفیق احمد ہے اور میں ایز اے سائنٹیفک آفیسر بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فوآباد تلا گنگ روڈ چترال میں کام کر رہا ہوں. تو میرا کام جو ہے وہ گراؤنڈ نٹ مونگ پھلی کی جو ہے ہمارا بیسیکلی جو کام ہے بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چترال کا وہ ہے نئی ورائٹی ڈفرینٹ جو ہماری فصلیں ہیں کرافٹ ہیں ان کی ڈفرینٹ ورائٹی پروڈیوس کرنا. تو اس میں میرا جو کام ہے ایکچولی وہ ہے مونگ پھلی کے اوپر گراؤنڈ نٹ کے اوپر. تو یہاں پہ ہمارا اسٹال بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اس میں ڈفرینٹ پروڈکٹ بھی ہے یہاں پہ اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ ورائٹیز ہماری اویلیبل ہیں.
तो एक्चुअली जो फार्मर डे या इस तरह के गैजेट फेस्टिवल का मकसद होता है वो ये होता है कि जो हमारे फार्मर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको नए तरीके और जो भी नई टेक्नोलॉजी है उससे रुशनास कराया जाए ताकि वो उसको अडॉप्ट करके अपनी जो पैदावार है उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो इस मकसद के लिए आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। इंतज़ामिया का शुक्रिया कि इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। तो इसके बाद मेनली जो हमारा काम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वैरायटी डेवलपमेंट है, नई अक़साम की डेवलपमेंट जो है वो हम करते हैं। तो उसमें हमारी नई वैरायटीज़ अभी हैं, बारी 11 है, पुरानी बारी 16 है। उसके बाद फ़ख्र चकवाल हमारी आई थी वैरायटी। उसके बाद अभी जो इस साल 2 हमारी वैरायटीज़ अप्रूव हुई हैं, वो उसमें एक सिदा 2022 है और एक चकवाल गोल्ड के नाम से है। वो स्टॉल पे भी अवेलेबल है, उनके बीज भी, उनकी फलियाँ भी। तो इसमें मेनली जो है इनका यील्ड पोटेंशियल होता है। और अगर हम देखें तो फार्मर जो है वो तकरीबन इस दफ़ा भी क्रॉप बहुत ज़्यादा लास्ट में गई है कि बारिशें ज़्यादा नहीं हुई, तो लोग ज़्यादातर देसी मूंगफली लगाते हैं। तो देसी मूंगफली का नुकसान ये हुआ है कि इस दफ़ा एक फार्मर मुझे पिंडी गेट साइड का बता रहा था कि हर पौधे के साथ 2 से 4 फलियाँ लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हमारे भी यहाँ पे आपको पता है कि बारिशें बहुत कम हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्ट फार्मेशन थी, जो फलियों की तादाद थी, वो बहुत अच्छी रही है कंपैरेटिवली। देसी वैरायटीज़ जो हैं, जिन लोगों ने देसी लगाई है उसके कंपैरिजन में हमारी वैरायटीज़ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है। तो दूसरा हमारा एक सेगमेंट है, कंपोनेंट है, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अब फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, फीमेल्स भी आई हुई हैं। तो ग्राउंड नट को हम सिर्फ नॉर्मली जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली जो है वो उठाया, उसे भून के खा लिया, ये काम नहीं है। इससे अगर देखें तो हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के लेके आए हैं। उसमें अगर हमारे पास देखें तो सबसे मेन जो है वो आयल की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम बहुत ज़्यादा आयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसे हम वेजिटेबल आयल कहते हैं। तो इसमें अगर ग्राउंडनट का देखा जाए तो ये प्रीमियम क्वालिटी आयल तस्वर किया जाता है। वर्ल्ड वाइड इसे प्रीमियम क्वालिटी आयल के नाम से जाना जाता है और चाइना इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो कि डिफरेंट कंट्री से, इंडिया वगैरह से वो इंपोर्ट कर रहा है। वो इट सेल्फ भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अपनी किल्लत को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि डिफरेंट कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। अब इसको हम फार्मर अगर इसको लेके चले कि ग्राउंडनट आयल को प्रोड्यूस करें तो वो बहुत अच्छा दर मुबादला कमा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो पीनट बटर है, मूंगफली का मक्खन, ये भी एक और इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीनट कुकीज़ हैं, पीनट केक है, पीनट बिस्किट्स वगैरह और बाकी चीज़ें। इसके अलावा पीनट मिल्क, कुछ लोग होते हैं जो दूसरा जो मिल्क होता है वो यूज़ नहीं कर सकते उसके फैट, एनिमल फैट्स की वजह से। तो अगर कोई इस तरह के हैं, पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो पीनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल है, होममेड, घर पे हर कोई आसानी से बना सकता है। तो इसके अलावा ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेनली हमारा ये फोकस है इस प्रोजेक्ट की या इस एक्टिविटी के साथ कि डिफरेंट लोग जो हैं घर बैठे, खास तौर पे फीमेल जो है ना, वो एज आ काटेज इंडस्ट्री इसे चला सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा दर मुबादला कमा सकते हैं और जो घर की इनकम है उसको, जैसे एक बंदा मेहनत कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो वो मंडी में जाके बेचता है तो उसे 12,000-14,000 रुपये एक मन का मिलता है। लेकिन अगर वो इसकी वैल्यू एडिशन कर लें, डिफरेंट, जैसे मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट बताए हैं, इन प्रोडक्ट्स को देख लें, इनको बना लें, तो उसका जो घर की इनकम है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और घर बैठे, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो घर बैठे आप सेल भी कर सकते हैं इसको। तो ये एक और इनकम का ज़रिया है। इसके अलावा मेन जो हमारा फोकस है वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा मकसद ये है कि हमने पैदावार को बढ़ाना है। उसके लिए हम नई वैरायटीज़ कोशिश करते रहते हैं कि उनको इंट्रोड्यूस कराएँ, उनको ब्रीड करें और नई वैरायटीज़ डेवलप करें। अब उनको फैलाना जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कि नॉर्मली अगर यहाँ पे देखें, अगर 10 फार्मर हैं तो उनमें से 8 फार्मर जो है अभी भी देसी वैरायटी लगा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जी इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने कभी दूसरी वैरायटी खाई ही नहीं है। एक बात ये है। दूसरा ये है कि आप अगर देसी वैरायटी मार्केट में अगर आज जाके आप पता करेंगे तो देसी वैरायटी का अगर 12,000 रुपये रेट है, तो हमारी जो वैरायटीज़ हैं बारी 16, बारी 11, उनका रेट आपको 14 से 15,000 मिलेगा। अगर देसी वैरायटी इतनी ही अच्छी है, मैं भी मानता हूँ चलें देसी वैरायटी खाने में अच्छी है, इतनी ही अच्छी है, तो उसका रेट फिर कम क्यों है?
अगर आपने 4 बोरी एक डिग्री से या 4 कनाल से लेनी है और उसके कंपैरिजन में अगर आपको 8 बोरी दूसरी वैरायटी दे रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है या देसी ज़्यादा बेहतर है, जिसकी रेट भी तकरीबन आपको सेम ही मिल रहा है जो हमारी वैरायटीज़ का मिल रहा है। तो इसके अलावा नॉर्मली देखा जाए तो फार्मर जो है, किसान हमारे भाई, वो बीज की मिकदार बहुत कम डालते हैं। 1 एकड़ के अंदर 24 किलो 20 से 24 किलो बीज डालते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 35 से 40 किलो बीज डालें ताकि पौधों की तादाद पूरी हो। जब पौधों की तादाद पूरी होगी तो आपकी अल्टीमेटली जो आपकी यील्ड है या पैदावार है वो भी आपकी बेहतर आएगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं जिनको अमल करके मेरे ख्याल से हमारे किसान भाई बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं मेरे। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली बताइएगा। ये जो आपने वैरायटी डेवलप की है, नाम आपने क्या ये हाइब्रिड है या जीएम है? नहीं, ये जो हमारी प्योर लाइन वैराइटीज़ होती हैं उसमें जीएमओज वगैरह नहीं है। जीएमओज नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत ही कम है, मेज़ के अंदर हैं थोड़ा बहुत या काटन में है, इसके अलावा जीएमओज नहीं है। हमारी ये जो वैराइटीज़ हैं ये हाइब्रिडाइजेशन एक और चीज़ है और जीएमओ जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं, हम नॉर्मल जो प्योर लाइन होती हैं हमारी वैराइटीज़ होती हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपस में क्रॉसिंग करा के उनकी सिलेक्शन करते हैं हमारे अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जीएमओ नहीं है, ये नॉर्मल हमारी वैराइटीज़ हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैराइटीज़ में। और किसी का क्वेश्चन हो काइंडली पीनट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे क्वेश्चन के दो ऐसे हैं जी। पहला तो ये है कि जो आपने जितनी भी ब्रांडेड बताई हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेटेड फार्मर हूँ, बेसिकली इंजीनियर हूँ और अपने फार्म पे जब भी लगाता हूँ तो एक ही खेत के अंदर डिफरेंट किस्म के जो बीज होते हैं ताकि उनको एक ही जिस्म की बारिश, एक ही जिस्म की ज़मीन का स्टफ़, एक ही जिस्म के जितनी भी पैरामीटर हैं मुयसर हों। उसके बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो हमारी पुरानी या जिसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं मुख्तलिफ ये बारानी बारी 11, बारी 16, उससे पहले 3-4 दानों वाली, ये सारी मैं लगा के देख चुका हूँ। एट द एंड ऑफ डे एवरेज है वो हमारी जो पुरानी फसल है उसकी ही आके निकली है। उसके लिए एक तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो मॉडल फार्म है, ये सेमिनार अपनी जगह पे बड़े हेल्पफुल हैं, लेकिन हमारा जो फार्मर है वो बड़ा रेजिस्टिव है, वो मतलब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब तक सीइंग इज बिगिनिंग जाके खुद अपनी आंखों से अपने सराउंडिंग में न देखे तो कम अज़ कम हर यूनियन काउंसिल या हर इलाके में कुछ मॉडल फार्म लगाए जाएँ ताकि वहाँ पे आप भी वहाँ के चकवाल में बारिश का जो रेशो है डिफरेंट है, तलागंग में मुख्तलिफ है, लावा में जाके और कम हो जाता है। तो लोअर स्टेप में एक तो उनको ये फैसिलिटी दी जाए। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा हार्वेस्टिंग के हवाले से है कि अभी भी हमारी जो हार्वेस्टिंग टेक्निक है वो बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की, और उसमें मैं नहीं समझा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्राड, चाइना और दूसरी कंट्री में विज़िट किया, वहाँ की जो मशीनी टेक्निक है, इवन इंडिया में आप नेट पे देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ वो भी हम लैग कर रहे हैं और उसमें आपके महकमा जो है ना क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। आपका जो पहला हिस्सा था क्वेश्चन का वो ये था कि हमारी वैरायटीज़ की प्रोडक्शन जो है वो दूसरी देसी वैरायटी से कम है। आपका पहला हिस्सा ये था क्वेश्चन का। तो मैंने आमिर साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मेला उस जगह पे रखें जहाँ पे देसी वैरायटी भी लगी हुई हो और साथ में हमारी बारी की जो इंट्रोड्यूस वैरायटीज़ हैं, जो नई वैरायटीज़ हैं, वो भी साथ लगी हुई हों ताकि फार्मर को वहाँ पे जाके चेक करा लें कि देसी वैरायटी की क्या परफॉर्मेंस है और जो हमारी वैराइटीज़ हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अब अगर आपने अभी रिसेंटली आप फार्मर हैं, आपने देखा होगा कि देसी वैराइटीज़ के साथ प्रोडक्शन जो है वो कितनी आ रही है और हमारी वैराइटीज़ की कितनी आ रही है। दूसरी बात ये है कि नॉर्मली जो फार्मर है, अब देसी वैरायटी का अगर बीज देखें तो उसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, कंपैरेटिवली जितनी भी फार्म की हमारी वैराइटीज़ हैं। और उसमें क्या करता है कि जिस ड्रिल के साथ देसी वैरायटी को लगाते हैं उसी ड्रिल के साथ ही वो दूसरी वैराइटीज़ को लगाते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो वैराइटीज़ हैं इसमें अगर आप 50 to 60,000 प्लांट्स पर एकड़ अगर रख लेंगे
उसकी प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर लेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है ना वो 25 से 30 मन। रिसेंटली अगर आप पीनट डेवलपमेंट हमारा ग्रुप है उसमें काफ़ी ये डिस्कशन होती रहती है, उसमें तकरीबन 400-450 के करीब फार्मर्स हैं। उसमें यहाँ पे भी हो सकता है कोई 1-2 फार्मर बैठे हों, उन्हें पता होगा कि इस वक्त भी अभी आपने काफ़ी फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर ली होगी, आपको आइडिया होगा कि कितनी प्रोडक्शन आई है। तलागंग का एरिया है एक लावा के अंदर हमारे एक फार्मर हैं बैतुलसलाम के शकील हाशमी साहब, उन्होंने 3.5 मन फी कनाल जो बनती है तकरीबन 28 मन पर एकड़, उन्होंने 12-11 और 12-16 ली है। ये फार्मर फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा। और साथ ही मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि इधर ही का एक फार्मर है जिसने मुझे बताया, बल्कि जहाँ पे हम अभी बैठे हैं जहाँ पे भी देसी वैरायटी लगी हुई थी, हम तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे, ये भी साथ थे हमारे मलिक साहब भी, तो इन्होंने बताया है कि ये तकरीबन 6 कनाल जगह है, यहाँ से 4 बोरियाँ मिली हैं उन्हें देसी वैरायटी की। ठीक है, एक बंदा ले रहा है 12-16 से 1 कनाल से 3.5 बैग, और यहाँ पे 6 कनाल से 4 बोरियाँ आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे सामने की एग्जांपल है, आमिर साहब अगर यहाँ पे हैं तो वो भी हमारे साथ है, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था जिस बंदे ने ये लगाई हुई थी देसी वैरायटी इसी ज़मीन पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो उसने लिए 6 कनाल से 4 बोरी, तकरीबन 4 मन कर लें उसको, 1 बोरी का 1 मन होता है। तो जो मैंने दूसरी आपको एग्जांपल दी है, ये ग्रुप के अंदर अगर यहाँ पे कोई दोस्त है तो उसे पता होगा कि 3.5 मन, 3 से 3.5 मन 12-11 और 12-16 इसकी अभी रिसेंटली प्रोडक्शन आई है लावा के अंदर। लावा क्या यहाँ से जो है वो बारिशें कंपेरेटिवली फिर भी कम होती हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? हार्वेस्टिंग का ये है कि हम कराते रहते हैं, सॉरी दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मेरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस दफ़ा तकरीबन 6 से 8 जो है ना वो डेमॉन्स्ट्रेशन प्लाट्स लगाए हुए हैं। वलाना विलेज के अंदर एक लगाया हुआ है, एक नक्का कहूट में लगाया हुआ है, एक कोट सारंग में है, एक तमन में है, इसी तरह से पिंडी वाली साइड पे हैं, चकवाल के दूसरे हिस्से में है, कसाल में है एक। तो ये इस तरह से हमने डिफरेंट फार्मर के पास हमने कंपैरिजन ही यही किया है कि हमने 2 वैरायटीज अपने फार्म की दी हैं फार्मर को, जिसमें 12-16 है और अटक 19 है या 12-11 है, और साथ में जो है उनको देसी लगवाई है ताकि आप खुद कंपेयर करें। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमारी फार्म की वैरायटीज अच्छी हैं, बेटर प्रोडक्शन दे रही हैं, आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसको फॉलो करें, अदरवाइज़ वही अपनी देसी वैरायटी लगाते रहें। दूसरा फार्म मैकेनाइजेशन का हमने पहले भी कोशिश की है, हम अभी भी कर रहे हैं कि हम ये जिस तरह से पीनट पिकिंग मशीन है वो भी इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे फार्मर लेवल पे। उसका इशू ये है कि जो थोड़ा सा पक्की ज़मीनें हैं वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा लो है, बाकी दूसरी जगह पे वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरे डिगर जो हैं इंटरनेशनली जो इंट्रोड्यूस हुए हैं चाइना में या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वो भी हमने इंट्रोड्यूस कराया था फार्मर लेवल पे, हमने उसको फील्ड में एप्लीकेबल भी कराया था। एक्चुअली फार्मर अभी उस साइड पे जा नहीं रहा, ये 2-3 साल हुए हैं मूंगफली का रेट बढ़ा है, तो अभी पहले तो फार्मर खाद भी नहीं डालते थे, अभी इन्होंने ये किया कि खाद भी डालना शुरू किया और इंटरेस्ट लेना भी शुरू किया। इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे फार्मर तो इंशाल्लाह प्रोडक्शन और बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद आपने मालूमात हमें फराहम की, और बनाने के एक दफ़ा फिर शुक्रिया जी। अल्लाह ताला ये जो मुश्किलों का मोहब्बतों का हमारा कारवां चल रहा है इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए इंशाल्लाह। रहा है, मैं बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मूंगफली की पैदावार के हवाले से तो बहुत बात हो चुकी है। अब जो एक फार्मर की तरफ से सवाल आए थे उसके जवाब भी काफ़ी हद तक दे दिए गए हैं, लेकिन मैं अपने भाई से ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ एक अदारा है जो मूंगफली पर रिसर्च करता है, वो है बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप उसको विज़िट करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है? बस आप 0 को प्लस करते रहे, आप इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे मंजिल तक। हमारे पास देखिए, हमारे पास मूंगफली काश्त करने के लिए, खेत से निकालने के लिए, मिट्टी से मूंगफली चुनने के लिए भी मशीनरी मौजूद है। अब आप ये चाहते हैं कि हम ये मशीनरी हर फार्मर को दे, तो ये हम तो नहीं दे सकते, ये तो हुकूमत का काम है। हमारा काम है तारफ करवाना, दिखाना कि ये एक चीज़ है जी, ये आप कर लें। अब दावत देना हमारा काम है, किसी ने मानना है या नहीं मानना, जिसका कान सफ़ेद है उसका सफ़ेद ही रहना है, वो उसने काला नहीं होना, और ना हमने उससे कोई लड़ना है कि तेरा काम चिटा क्यों है। तो मूंगफली का अब जो अगला डेस्टिनेशन है, पैदावार चलती रहेगी,
आज भी गंदम के 100 मन लेने वाले फार्मर भी मौजूद हैं और 20 मन लेने वाले भी मौजूद हैं। ये चलता रहेगा, लोग सीखते रहेंगे, एवोल्यूशन का दौर आएगा, लोग आगे चलते रहेंगे। अब मूंगफली का हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कि हम लोगों को वैल्यू एडिशन की तरफ लेके आए कि लोग उसके प्रोडक्ट बनाएं, उसमें बिजनेस करें, तभी ये जाके सस्टेनेबल होगा, तब जाके हम कह सकेंगे कि मूंगफली से कोई हमारी इकोनॉमी में इजाफा हो रहा है। तो उसके लिए हमारा अदारा मूंगफली की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ट्रेनिंग फराहम करता है। मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ हिस्सों में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं और उसकी मार्केटिंग सिखाते हैं कि किस तरह इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जितने हमारे ये बच्चे हैं ये सारे नेट पे सारा दिन काम करते हैं। अगर ये ऑनलाइन मार्केटिंग कर लें और इसका प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दें तो उनके अपने अखराजात भी निकल जाएंगे, उनको माली फ़ायदा भी होगा और मूंगफली का सफ़र भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो फसल उस वक्त तक आगे नहीं जा सकती जब तक लोग उसमें दिलचस्पी न लें, उसमें कारोबार न करें, उसमें से पैसा ना बनाएं। तो बस इतना ही पैगाम था। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं आ जाऊँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बारिश वाला खुद मैंने लगाई है, देसी भी लगाई है, 1.5 बोरी पर बीघा एवरेज लाई है जी देसी की, और 7.5 बोरी जी ये साल में इस मौसम में ये मैंने खुद निकाली है जी। बस शुक्रिया जी बारिश वाला के हवाले से। आप फार्मर्स की रहनुमाई करते रहेंगे। इश्तियाक भाई यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, किसानों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों से आगाही दे रहे हैं। तलागंग से इनका ताल्लुक है, ये अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। और कराची से माशाल्लाह अवैस भाई आए हुए हैं। अवैस भाई को मैं कहूँगा स्टेज पे आएँ, और माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास ये ऑयल एक्सपेलर मशीन है जिससे मैं मूंगफली का तेल निकाल के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप मशीन घर में यूज़ करके अपने घर के लिए ऑयल जो है वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी थोड़ी प्राइस आइडिया दे दें। ये 1,05,000 के लिए 5,000 के मौजूदा वक्त में करंट प्राइस है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी मशीन है? पीनट बटर बनाने की मशीन है हमारे पास, साथ में हमारे पास सलांटी वगैरह पैक करने की, मसाले वगैरह पैक करने की मशीनें हैं। फिर मेडिसिन की गोलियां वाली बनाने की मशीन है, पाउडर मिक्सर्स वगैरह हैं, लिक्विड सिरप बनाने की मशीन है, जामशीरी वगैरह फिलिंग करने की मशीन है, उसको लेबल लगाने की मशीन है। तमाम मशीनें हमारे से मिल जाएंगी आपको। और आपका एड्रेस? हमारा लाहौर में सेटअप है, सर्कुलर रोड 2 मोड़िया पर। तो आपको फाइनल कर देंगे। सिर्फ आपके पास मूंगफली ऑयल दोस्तों, फार्मा की भी है, फूड की भी है, कॉस्मेटिक्स की भी तो है। इसमें सिर्फ हम मूंगफली का निकाल सकते हैं या और चीज़ों के भी नहीं, ऑयल आप निकाल इसमें सकते हैं? बादाम का बादाम का भी निकाल सकते हैं, कलवंजी का भी निकाल सकते हैं, तिलों का भी निकाल सकते हैं, सरसों का भी निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, उनका निकाल उससे भी छोटा खशकाश आता है वो निकाल। तो 1 kg अगर हमारे पास ये मूंगफली है, दाना निकला हुआ, तो कितना तेल हम एक्सपेक्ट करें? तो उसमें से आपको तकरीबन 350 ग्राम से 400 ग्राम 350-400 रा पीनट में से, रोस्टेड पीनट में से रोस्टेड में क्योंकि हीट लग जाती है तो 50 रेशो कम हो जाती है। अच्छा भैया नवे बीज ने हवाले नाल दोस्तों कि नवी वैरायटी है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਦਾ 2022 ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਖਰ ਚਕਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਕਵਾਲ ਗੋਲਡ, ਇਹ 3 ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈਆਂ। ठीक है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਿਦਾ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚਕਵਾਲ ਗੋਲਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਸੀ ਇਹ ਫੀਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰੀ 16 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਹੈ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ठीक है। और फिदा भाई ने कितनी ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ 40 ਤੋਂ 50% ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਬੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ 50 ਤੋਂ 55% ਹੈ। 53% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪ ਦੇਖਦੇ हैं। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਕਵਾਲ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। पैदावार ने लिहाज ना
فدا 22 سدا باری 16 ساری ورائٹی جڑیاں نے پیداوار نال جڑیاں نیولی ورائٹیز ہیں ٹھیک ہے لیٹسٹ ورائٹیاں ساری باری دیاں یہ ساری پروڈکٹس کے لحاظ نال ساری اچھی ہیں جی ٹھیک ہے ایوریج پروڈکشن 25 تو 30 مانے فی ایکڑ جی ٹھیک دوست دیکھیں جی فدا 22 باری 2011 باری 2011 تھوڑا جی بالکل بہت باری 2011 ہے جی کھانا آ گیا جی سب لوگ کھانا کھا کے پھر ڈیم کی طرف جائیں گے تاکہ تھوڑی جو ہے طبیعت فریش ہو جائے سر تھوڑی بیٹری جو ہے لو تھی وہ تھوڑی چارج ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں تمہیں کہہ دیہات چارج گاڑی پہلے بچے لے لیں چڑیاں منیاں ڈاکٹر رفیق صاحب بھی موجود ہاں ہیں بھائی گاڑی بچوں کو پہلے دیں باقی مہمانوں کو سرو کریں آگے فرنٹ پہ آ جائیں یہ بھائی بھی دے رہے ہیں کوئی بندہ مسنگ نہ ہو اور فرینڈلی جس کو کھانا نہیں پہنچا وہ ہاتھ بلند کرے انشاءاللہ جی دوستو ویڈیو دوستا پوری ویکھی سی جی کافی سارے ڈسکشن ہوئی سوال جواب بھی ہوئے جی اور معلومات بھی کافی دوستاں ویڈیو سی تو ہوں اتنے تو برا منگنا جی اجازت ریکویسٹ یہ ہے دوستو کہ یہ تو اپنا چینل ہے ساتھ ضرور سبسکرائب کرو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد